How different is practical life different from student life? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार जो हम पढ़ के गए हैं मोस्टली उसी में से आएगा, but how different is it? Practical life is different from student life. Obviously, you need a platform. When we are preparing for the exams, you have a proper structured questions that guide us towards the answers. But in practical life, there are some issues like that you don't know where to go, and there are no accounting records for that. So you yourself have to identify the contracts, identify what IFRS is being implemented there, where you have to what adjusting entries you have to park in the financials. So yeah, because ultimately it's the responsibility of an auditor to give an opinion if he's giving an opinion. So yeah, that has to go to the shareholders and the stakeholders. क्या skills ऐसी student के अंदर होनी चाहिए which will help them to ace in these industries or firms? 3 to 4 skills I believe that a student should have. Analytical thinking, which will come through standards, rigorous study of standards. That is good. That's a good strategy और पेपर निकालने के लिए. But ultimately to get into an audit firm in a good recognized organization, आपको in-depth knowledge of IFRS analysis होनी चाहिए. Communication skills is very important. When the partner is interviewing you, he does not check your technical skills. Technical skills usually आपकी हो जाती है manager level पे या initial level पे. The partner, he is checking your personality. ये ACCA students में I would totally agree to this. Confidence बड़ा lack करता है. बहुत लैक करता है. तो वो कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आपको अपने उस पर कमांड अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी आपकी. टाइम मैनेजमेंट में काम करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं भी तो वो आ जाएगी, आपको ऑडिट फर्म करवा ही देती है टाइम मैनेज करना किसी ना किसी तरह. तो या दैट्स अडेप्टेबिलिटी इज वन मोर. हर 3 महीने में आप नए ऑडिट पे होते हो, एक नए असाइनमेंट पर होते हो और आपको पिछला वाला सब भूल कर ऑन द वेरी स्क्रैच आपको बिल्ड करना पड़ता है. सही है बिल्कुल. देखिए भाई, आई नो CA, ACCA both are very tough and it's a very long commitment. It challenges you physically, it challenges you mentally. Everything is being challenged at that time. Hello and assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is your host Aisha Ahmed and welcome back to another episode of Beyond Balance Sheet. As of today we have a very special guest with us who started his journey as in CA and then switched to ACCA later and completed that. He has currently working in a firm and has completed his articles from KPMG, which is one of the big 4 firms where every student dreams of. So without any further ado, let us give a warm welcome to our very own guest, Mr. Anas. Assalamu alaikum. Walaikum salam. I hope you're doing well. Everything's all right. Alhamdulillah. Okay, so give us a brief about something. Why did you started a journey related to accounts and finance? I was always curious about how the big industries and the big companies, whenever I moved, when I was moving from Shara Faisal or any industrial area, I was very fascinated by the huge organization, the huge building that I saw. That what's actually happening there, how the things are going on in the organization. So I came to know about there's a profession known as chartered accountancy, which obviously pays very well in long term, and you can be at a huge position at a upper position by performing that by completing that qualification. So I was like, okay, let's just do a bit of research about it. After my A levels, I researched about CA and came to know, okay, then this is a good field and I should move in it. True. अच्छा, it was your personal decision completely या किसी ने आपको guide किया था कि you have to come along this field? Nobody guided me in it, and I was just, it's quite a funny incident. I was playing cricket. One of my friends who has left CA due to some reasons, and he was the one who explained me that how he took an admission in AFC. Obviously, he was older than me, and he told me that okay, if you're an A-level student, you can excel in this, and you'll get. He just showed me a lot of what do I say, money that you can get out of it. So I was very fascinated. I was like, okay, I think I should think about it. First of all, I was planning to do engineering. But when I came to know about CA, chartered accountancy, and all, and this obviously the whole organization thing, I was like, okay, yeah, this is a good field, the right thing for me to do. वैसे मोस्टली आई हर्ड के इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इन फील्ड्स का क्योंकि इतना बताया नहीं जाता हम लोग को व्हेन वी आर इन कॉलेजेस डूइंग A levels और इंटरमीडिएट. हम लोग को इतना फेमिलियर नहीं होता. बट एज यू मेंशन के थ्रू अ रेफरेंस यू गॉट टू नो अबाउट दिस. अच्छा, वुड यू लाइक टू टेल अस, यू हैव वर्कड इन वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स जहाँ स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं जाने का. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवर देयर? The experience was great, obviously, but KPMG comes with a cost. If you are working in a big 4, so you have to be totally away from your home during the busy seasons, and so if you are obviously after you're qualifying from KPMG, so you have a big name on your CV. True. Which helps you a lot in your future and your career growth.
3.5, 4 years is a huge thing, performing articles from there. But obviously, coming back, it comes with a cost. You have to work a lot. You have to perform late sittings in the busy seasons. True. And yeah, it's quite rigorous. अच्छा, how different is practical life different from student life? क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार जो हम पढ़ के गए हैं mostly उसी में से आएगा, but how different is it? Not totally. I wouldn't agree. I wouldn't disagree with that. Practical life is different from student life. Obviously, you need a platform. Student life, CAF, specifically CAF, does give you a platform so that you can build a building on it and the base for that. But practical life is way different than the student life. You have, when we are preparing for the exams, you have a proper structured questions that guide us towards the answers. True. But in practical life, there are some instances and there are some issues like that you don't know where to go, and you yourself, and there are no accounting records for that. So you yourself have to identify the contracts, identify what IFRS is being implemented there, where you have to what adjusting entries you have to park in the financials. So yeah, because ultimately it's the responsibility of an auditor to give an opinion if he's giving an opinion. So yeah, that has to go to the shareholders and the stakeholders. True, absolutely. I would totally agree to this. Yeah. अच्छा, would you like to tell us कि जब आप when you stepped into KPMG, थोड़ा सा मुझे brief दीजिएगा, क्या skills ऐसी student के अंदर होनी चाहिए which will help them to ace in these industries or firms? Okay, 3 to 4 skills I believe that a student should have, obviously, and he should work on it during his after post CAF or during his CAF. Analytical thinking, which will come through standards, rigorous study of standards. Obviously, I've seen some other students, they only study for the exams preparation. True. बस पेपर निकल जाए, 50 नंबर किसी तरह आ जाए, इंटरेस्ट शो नहीं करते सब्जेक्ट के अंदर, बस किसी तरह पेपर निकल जाए. So that is good. That's a good strategy और पेपर निकालने के लिए. But ultimately, to get into an audit firm in a good recognized organization, आपको in depth knowledge of IFRS analysis होनी चाहिए. True. ठीक है ना, ताकि क्योंकि because when you are being interviewed, so they do check thoroughly you, क्योंकि मार्केट अब बहुत सैचुरेट होती जा रही है. हाँ, क्लटर हो रही है डे बाय डे. या एंड द थिंग्स आर गोइंग, जिस तरह आप देख रहे हैं सिचुएशंस आर गोइंग इन द मार्केट. हमारा स्टॉक मार्केट कितने पॉइंट से गिरते आ रही है रोज, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, वॉर्स चल रही हैं दुनिया में. तो पोस्ट कोविड जो है ना, वो बहुत इश्यूज होना शुरू हो गए थे जब से ये मसले होना शुरू हुए. तो आर्टिकल्स मिलना वो मुश्किल हो गई हैं. तो अब वो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव टू फाइंड अ डायमंड, तो वो भी डायमंड ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. वो कहते हैं यार 100 बच्चा, 1000 बच्चा आ रहा है मेरे पास, मैं उसमें से मुझे 50 बच्चा चाहिए. वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स. ठीक है ना, तो वो दे फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. मतलब इवन इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एज द बेस्ट, यू हैव एवरीथिंग, वो उसमें से भी द बेस्ट चुनेंगे. सो यू शुड वर्क ऑन दैट. एनालिटिकल स्किल्स सोचें, हाउ द IFRS बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन रियल लाइफ. आप इफ यू आर गेटिंग एन इंटर्नशिप फ्रॉम एनीवेयर, go for the internship. Unpaid internship, go. Okay, that's fine. अभी का regret, अभी का तकलीफ will help you shape your future. अभी थोड़ी तकलीफ उठा लें, कम पैसे पे चलें, don't think about the money during this, लेकिन it will pay you a lot in the future if you survive that. बाकी analytical thinking हो गया. Communication skills is very important. When the partner is interviewing you, he does not check your technical skills. Technical skills usually आपकी हो जाती है मैनेजर लेवल पे या इनिशियल लेवल पे. The partner, he is checking your personality. क्योंकि वो कह रहा है यार, you are representing my firm, the client. True, ऐसा ही. And you are talking to the CFOs of the client, you are talking to the managing directors, the finance directors of the client. So you are representing an audit firm, a huge audit firm, और एक उसका नाम, एक brand value है उसका. And if this person who can't even say his name properly and introduce himself properly, ये मेरी फर्म में जाएगा, मेरे कैसे ये काम कैसे निकलवाएगा क्लाइंट से. ये स्टूडेंट्स में आई वुड टोटली एग्री टू दिस. कॉन्फिडेंस बड़ा लैक करता है, बहुत लैक करता है. तो वो और कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आपको अपने उस पर कमांड अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी आपकी. या तो आप जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, अपने एनालिटिकल थिंकिंग पे काम करें, टाइम मैनेजमेंट पे काम करें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं भी तो वो आ जाएगी, आपका ऑडिट फर्म करवाई देती है टाइम मैनेज करना किसी ना किसी तरह. सो या दैट्स अडेप्टेबिलिटी इज वन मोर. हर 3 महीने में आप नए ऑडिट पे होते हो, एक नए असाइनमेंट पर होते हो, और आपको पिछला वाला सब भूल कर ऑन द वेरी स्क्रैच आपको बिल्ड करना पड़ता है. हर किसी के, हर ऑडिट के अपने प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर ऑडिट के अपनी एक वॉक थ्रूज होते हैं, अपने वर्क पेपर्स होते हैं, अपने एक ऑडिट स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो होते हैं. एक इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, एक
फाइनेंशियल बैंकिंग की तरफ से। सो आपको अगर वर्सेटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल रहा है तो आपको उसके हिसाब से अडेप्टेबल भी होना चाहिए। अच्छा, you started from CA and then switched to ACCA. Yeah. थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताएंगे, like कैसा एक्सपीरियंस था when you switched to it, कैसे लोगों ने क्या इस पे कमेंट्स पास करे, like how did you faced all that, और अभी आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं? I haven't properly switched. I have just given it a pause little bit, okay. and I'll see that whether I have to continue it or not. But the thing is that in my personal opinion, I don't see any difference at all. सही है। ICAP has not saying anything. ICAP has made CA very much structured and very much difficult for the students nowadays. True. The organization, the financial bodies around the world are going towards simplicity, are going towards ease of in students, because what do you want from a student? एक बंदा ऐसा हो जिसके पास IFRS की अच्छी नॉलेज हो, एक बेसिक नॉलेज हो, okay, he can perform, he may understand the conceptual framework and the fundamental principles and how the IFRS is being implemented. It's a principle, it's not a law, सही है ना? तो वो एक आपको अगर एक grasp मिल गई आपको, which the ACC approach is very good in that, कि आपको मिल गई, okay, you got how the things are going on, then you learn everything from a practical experience. आप जितना भी अकाउंटिंग पढ़ लें, आप जितना भी IFRS पढ़ लें, जितना भी ILAS पढ़ लें, जो आप प्रैक्टिकल में सीखोगे, that's the thing. True. तो आपने CA फाइनल्स में ख़ास तौर से आप कैफ इज़ वेरी गुड, कैफ आपको करना चाहिए। फाइनल्स में आके उन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी और इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत एलोंगेट कर बहुत ज़्यादा, और फिर फाइनल्स में 8 पेपर किसी कहीं पे भी नहीं होते, इसी फाइनल में 4 पेपर हैं। आप FFR ले रहे हो एंड देन यू आर टेस्टिंग अकाउंटिंग अगेन इन MSA1, फिर आप यू शुड चेक वन टाइम ना, आप सही है, आपका हो गया अकाउंटिंग, आपने चेक कर लिया, आपको सब कुछ आ गया, देन लेट द इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड ऑल। अच्छा, वाज देयर एनी मोमेंट जो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग या चैलेंजिंग हुआ इन द फर्म, यू वर लाइक कि यार कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर इट, एंड हाउ डिड यू हैंडल इट? ओके, दिस हैपेंड once in many times, but the months जो मुझे याद रह गया, which was I was on a bank reporting. और ऑब्वियसली बैंक रिपोर्टिंग आर वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको 2-2.5 महीने में पूरा ऑडिट क्लोज करना है, और उनके बैंक के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बैंक के नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, और उनका क्वांटम बहुत बड़ा होता है, वॉल्यूम उनका, और उनकी रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उसको मैनेज करना, उसको हम लोग दिन में 18-20 घंटे काम करते थे। मतलब we used to go to the client at 10 AM in the morning and used to come next day at 6-7 AM. Oh my God. 3-4 hours you're just going for sleep, changing clothes and coming back to the client. So that's that was very difficult time for me obviously. लेकिन एक चीज़ है कि उस 2.5 महीने ने ना मेरी 10 साल की ट्रेडिंग कर दी। तो once you are through with that challenging time, obviously मैं बीमार भी पड़ा, I had multiple issues, I was like मैं कहाँ आके फंस गया। बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हेक्टिक होता है। it challenges you physically, it challenges you mentally, everything is being challenged at that time। और फिर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि काम आपको निकालना है at any cost। तो वो जो पीरियड होता है वो आपको ट्रेन कर देता है। जब भी I was saying at the start before the podcast कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स एंड ऑडिट फर्म्स के आर्टिकल्स में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज ऑडिट फर्म आर्टिकल्स बंदे को तराशता है, जैसे हीरे को पहाड़ पे से तराशते हैं ना, वैसे वो तराशता है। बट वो जब सब आप गो थ्रू कर लेते हो, एक्सपीरियंस इज ऑल वर्थ इट। देन व्हेन यू आर डन विद दोस एक्सपीरियंस, व्हेन यू हैव बिकम सुपरमैन, फिर आपको कोई भी चैलेंज मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, यू कैन गो थ्रू विद। आई ट्रूली एग्री विद ऑल दिस। या अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा ब्रीफ दें, स्टूडेंट्स जो अभी करंटली और परस्यूइंग ACCA, उनको अपने अंदर क्या क्या स्किल्स डेवलप भी करनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो पढ़ रहे हैं और उनका मतलब ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हैं, ऑफ कोर्स बैक एंड फोर्थ आप एग्जाम्स देते हैं, तो हाउ टू कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड? ओके, देखिए भाई, आई नो ACCA both are very tough and it's a very long commitment. True. ठीक है, but it's not a 100-meter race. You don't have to become Usain Bolt in it. It's a marathon. आप अपना पढ़ते रहें, गिव योर टाइम, कोई बात, 2 साल एक्स्ट्रा लग रहा है ना, इट्स फाइन। बिकॉज देखिए होता क्या है असल में कि व्हेन वी स्टार्ट आवर CA वी आर 18-19 years old। ट्रू। ठीक है, ख़त्म करते करते 26-27 हो जाते हैं। 23-24 साल की उम्र में जो हमारा दोस्त इन्होंने हमारे साथ इंटर किया होता है, A levels किया होता है, ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो ग्रेजुएट होकर जॉब पे लग जाते हैं कहीं, उनके लिंक्डइन पे उनकी पोस्ट आ रही हैं
और लिंक्डइन तो बहुत लोगों का जो है वो वैसे ही डिमोटिवेट करता है, और उनकी जो है फेसबुक पे आ रही है कि वो काम कर रहे हैं, फिर वो उनकी शादी भी हो जाती है, वो कह रहे हैं यार मैं अभी 25-26-27 साल का हो गया, हम अभी कहीं हम कब हम काम करना, कब हमारे आर्टिकल शुरू होंगे, कब हम काम करेंगे, कब हम एक पोजीशन में बैठेंगे, कब हम बाकी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली शादी तो एक अलग बात है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में जिसके बारे में उसको फैसला, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे इतना इन्वेस्ट किया है तो मुझे उनको रिटर्न भी देना है ऑब्वियसली आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो इशू ये है कि इसलिए वो डीमोटिवेट करता है बंदे को, लेकिन बिलीव मी वंस यू आर थ्रू विद दैट पीरियड, आपके पास एक कोई भी एक क्वालिफिकेशन आ जाए, डजेंट मैटर वेदर सी और नहीं सी है, कोई भी क्वालिफिकेशन आ जाए, आपके पास एक अच्छी फर्म्स के आर्टिकल्स हों और आप एक लर्नड बंदे हो, आपकी पर्सनैलिटी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, ठीक है ना, नो बडी कैन स्टॉप यू। और फिर आप अल्लाह आपको वहाँ से देता है जहाँ से सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ये सीन है बस। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू अ रैपिड फायर राउंड। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि स्पॉन्टेनियस आंसर्स करने हैं, सही है ना, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड आपको वो बतानी है, ठीक है। सीए और एसीसी? एसीसी। रियली? या। ऑडिट और टैक्स? ऑडिट। डेडलाइन प्रेशर और एग्जाम प्रेशर? डेडलाइन प्रेशर। ज़्यादा हेक्टिक होता है। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस लाइफ? डिपेंड्स। यही की चूज फिर भी एक ही चूज करना है। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम। वन स्किल एवरी अकाउंटिंग स्टूडेंट शुड मस्ट लर्न? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैंने सुना है एक्सेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इन दैट टर्म्स हाँ एक्सेल। वन मिथ अबाउट बिग फोर यू वांट टू ब्रेक? दैट वहाँ पे सेल्फ रेफरेंसेस चलते हैं, ऐसा नहीं होता। वन बुक और रिसोर्स एवरी फाइनेंस स्टूडेंट शुड रीड? IFRS। वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग देयर अकाउंटिंग जर्नी? संभल के आना। ऐसा ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वी कम विद सो मच बैगेज और एक ड्रीम्स होते हैं आपके, और फिर आके एकदम से कुछ चीज़ें आपको पेपर फ्लंक होता है, शैटर कर देती हैं, तो काफ़ी सारी इशू ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी ना, तो आप बहुत मोटिवेटेड होते हो उस टाइम पे, और आप होते हो कि बस यार अब तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना है, और अब तो मैंने लाखों में कमाने पैसे, 6 डिजिट से कम, मतलब मैंने तो 5 लाख से कम 4 लाख से कमाना नहीं है। ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं आपकी, तो यू हैव टू ग्रो एंड यू हैव टू वर्क अलॉन्ग विद द लेट द प्रोसेस डू देयर वर्क। आप सिर्फ मेहनत करते रहो, रिस्क देना और एक आपका अल्लाह पाक का काम है, काम सिर्फ मेहनत करना है। अच्छा, थोड़ा आप मुझे ब्रीफ दें, बिग फोर फर्म्स का एनवायरनमेंट कैसा होता है? बिकॉज आई हैव हर्ड लाइक थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, थिंग्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फर्म और समथिंग, तो थोड़ा गिव अस सम ब्रीफ। आप मेरे और भी अगर मेरे कॉलीग्स देखेंगे जो मेरे एक्स में, वो कह रहे हैं यार ये बातें लगा रहे हैं हमारी। उसके टाइम पे जब आप रिपोर्टिंग के टाइम पे टॉक्सिक हो जाते हैं, बिकॉज देखिए हर किसी पे प्रेशर होता है। ट्रू। पार्टनर डालता है मैनेजर पे प्रेशर, मैनेजर डालता है सुपरवाइजर्स पे, सुपरवाइजर डालते हैं ट्रेनिंग्स पे प्रेशर। एक हायरार्की है पूरी। पार्टनर बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे लेटर क्लाइंट चाहिए मेरा। अब वो मैनेजर्स का, और मैनेजर एक टाइम पे 4-10 क्लाइंट देख रहा है, तो वो प्रेशर आपको लेना बाय होक बाय क्रुक लेना है। बिल्कुल ऐसा ही। वो आपको तो उसके साथ बंदे में टॉक्सिसिटी आ जाती है। बंदा सो नहीं रहा, बंदा नींद नहीं ले रहा, उसको पेपर्स की अलग टेंशन, रिजल्ट आ रहा रिजल्ट की टेंशन, एग्जाम्स आ रहे एग्जाम्स की टेंशन, फिर रिपोर्टिंग की टेंशन, फिर अपने हेड्स निपटाने, फिर बच्चे कोई मसले कर रहे हैं, आपस में टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये है। तो वो टॉक्सिसिटी नेचुरली आ जाती है आपके अंदर। लेकिन वो टॉक्सिसिटी आपको बहुत कुछ सिखा देती है। लेकिन जिसने हैंडल कर ली, फिर जिसने हैंडल, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि मेरी जो वो रिपोर्टिंट थी 18 घंटे वाली, उसमें जो टॉक्सिसिटी मैंने बर्दाश्त करी है, वो मैं लिटरली आई वाज लाइक, आई फेल्ट लाइक क्राइंग एट सम टाइम्स। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मैं मतलब रोता होता नहीं हूँ मैं बड़ा, लेकिन वो उस टाइम पे मैं आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया मेरे साथ, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन दिस हैपन्स। और जब आपका वो पीरियड थ्रू हो जाता है तो फिर आप हर किसी के बंदे से कैटर कर लेते हो, फिर आपके आगे कोई बात नहीं कर सकता एट सम पीरियड। या इट वाज लवली मीटिंग यू अनस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. Thank you so much viewers for watching. Don't forget to like, share and subscribe and comment down below what questions you want to ask next. We will be questioning on your behalf.